Hello aspirants, welcome you all to Agro Academy. Hello aspirants, welcome to second class of genetics in plant breeding. So for today our topic will be genetics. In today's lecture, I will try to deal with few concepts that important for AFO important from AFO points of view. So before further delay, let's begin. पहले हम जेनेटिक्स के टर्मिनोलॉजी पे आते हैं. जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, heredity and variation in organism. The term genetics was coined by Bateson. Before starting further, first let's know about Gregor John Mendel, known as father of genetics. He was born on July 2022 in the year 1822 and he laid the foundation of genetics. He worked on garden pea and his study period was from the year 1856 to 64. Remember this study period because it is very important. He published his work in the Natural Society of Brunn in the year 1866 and the title of his publication was Experiments in Plant Hybridization. Remember this publication title also. It is very important. And also this the garden pea, sometimes they might ask whether it was garden pea or field pea. So it was garden pea and the scientific name is Pisum sativum and also its chromosome number is 2n equals to 14. Now let's know about some important terminologies. What is gene? Gene is the segment of DNA which governs the expression or development of one or more than one character in an individual. सो जीन क्या होता है कि ये डीएनए का एक सेगमेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए. लाइक किसी इंसान का हाइट कैसा होगा या प्लांट के केस में अगर हम देखें तो प्लांट का हाइट क्या होगा, फ्लावर कलर क्या होगा. सो वेरियस कैरेक्टर्स आर गवर्न्ड बाय दिस जीन एंड द टर्मिनोलॉजी वाज गिवन बाय जॉनसन. मेंडल कॉल्ड इट फैक्टर. This is same thing written here. It occupies a specific position on chromosome called as locus. Suppose this is our chromosome. So it will occupy a specific position and the position where it resides, it is known as loci. Then next terminology is allele or allomorph. It is alternative form of a gene. For example, for us the trait is height. Okay. So it is for tall, height has two allele, like two form. One is tall and one is dwarf. One is tall and one is dwarf. Okay, for this tall and dwarf is the allele, but our trait or character is height. Coming to next terminology is dominant allele. So allele is two type. It will be dominant and recessive. Dominant allele means the allele that expresses its trait even only when it is present in a copy. That is, if it is present, like for tall, it is capital T. Obviously, it will show tall height. But even if it is present in heterozygous condition, as capital T small t, then also it will express itself and the trait and the expression will be tall height. ओके. सो ये डेफिनेशन का कहने का मतलब यही है कि जो अलील होता है, जो डोमिनेंट अलील है, वो खुद को एक्सप्रेस करता है इवन इफ इट इज प्रेजेंट इन ओनली वन कॉपी. इट मार्क्स द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव अलील इन हेट्रोजाइगस पेयर. आप यहाँ देख सकते हैं ये रिसेसिव अलील था, पर ये डोमिनेंट अलील है उसने उसके इफेक्ट को मास्क कर दिया. जीनोटाइप्स विल बी like capital A, for example here the example is pea plant. In pea plants the capital A is for purple flower, small a is for white flower. So कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए में रहेगा तो वो पर्पल फ्लावर भी बनेगा. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डोमिनेंट ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं. नेक्स्ट इज रिसेसिव अलील.
रिसेसिव अलील क्या होता है कि ये अलील खुद को, जब ये दो कॉपीज में प्रेजेंट रहेंगे तभी ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए एंड दैट टू इन रिसेसिव कंडीशन, तभी ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए आ रहा है फ्लावर कलर का, तो हमारे डोमिनेंट फॉर्म ही दिखेगा पर्पल, पर रिसेसिव फॉर्म दिखाने के लिए इसको हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में ही रहना पड़ेगा, दैट इज वाइट, तभी ये वाइट एक्सप्रेस कर पाएगा। इट इज मार्क्ड बाय डोमिनेंट अलील इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। सेम चीज मैंने जो यहाँ बताया टॉल के केस में कि हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तो इसका इफेक्ट डोमिनेंट अलील इसको मास्क कर देगा। इसका जीनोटाइप एक्सप्रेस होता है स्मॉल ए फॉर वाइट फ्लावर्स। Next is genotype and phenotype. This term was also coined by Johnson. Genotype is the genetic makeup of an organism, whereas phenotype is physical appearance. हमें हमारे पास 3 है, मान लीजिए ये जो टॉल और डॉर्फ है, ये हम फिजिकली देख पा रहे हैं कि ये प्लांट है जो ये टॉल है और ये प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, ये हम फिजिकली देख पा रहे हैं, पर इसका जेनेटिक मेकअप तो 2 हो सकता है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे मैंने बताया था पहले कि जो डोमिनेंट फॉर्म होता है रिसेसिव फॉर्म को मास्क कर देता है उसके एक्सप्रेशन को, तो इसीलिए ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है यहाँ पे, ये हमारा जेनेटिक मेकअप है। तो इसका कहने का मतलब है ये कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज जीनोटाइप एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिनोटाइप। Example is height for phenotype tall and dwarf, genotype capital T, small t. This small t is for dwarf and these both are for tall. Then next terminology is homozygote and heterozygote. Both term was given by Betson. Remember the scientist name because ये आपके बहुत light questions होते हैं, आप इसको गलत करोगे तो मे भी regret हो सकता है बाद में। Then next terminology is homozygote. When organism has 2 identical allele for a trait, like for flower color, या कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ये दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब आइदर वो डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा दोनों अलील या रिसेसिव फॉर्म में रहेगा। लेकिन हेटेरोजाइगस में क्या होगा, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 डिफरेंट अलील फॉर अ ट्रेट, that is both dominant and recessive, if both are present together then they are known as heterozygote. If either dominant or recessive forms are present in 2 identical copies, they are homozygote. Hybrid is the offspring produced by crossing 2 genetically different parents. मतलब हमारे genetically different parents हैं, एक tall plant है हमारे पास, एक dwarf plant है, हमने उसका क्रॉस कराया, हमें हाइब्रिड मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो हमें ऑफस्प्रिंग मिला है ये हमारा हाइब्रिड है। इसमें क्या बोल रहा है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग 2 जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स, ये हमारे जैसे कि यहाँ पे पेरेंट्स हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, हमारे 2 पेरेंट्स, इनको क्रॉस कराया हमने, हमें हाइब्रिड मिला। आगे हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग 2 जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड। अब इस हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने के लिए हमने दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस कराया है, तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इट इज वाइडली यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग टू कंबाइन डिजायरेबल ट्रेट्स लाइक डिजीज रेजिस्टेंस, यील्ड और स्ट्रेस टॉलरेंस। And monohybrid cross is the cross between 2 individuals that differ for only one trait. मतलब कि ये हम सिर्फ इसमें मोनोहाइब्रिड में क्या होता है, एक ही ट्रेट लेके चल रहे हैं कि हाइट, हमारा एक ट्रेट है हाइट, इसके हमारे पास 2 अलील हैं टॉल या डॉर्फ, जो हमने ये पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है कि 2 अलील आ गए टॉल और डॉर्फ। तो हम सिर्फ एक ही ट्रेट को स्टडी करते हैं एक टाइम पे। इसमें जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होगा, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा, ये आप याद कर लेना। ये जो रेशियो इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, सो आप ये बस रेशियो याद कर लो। देन डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या होता है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स दैट डिफर इन 2 ट्रेट्स, मतलब 2 ट्रेट्स को हम एक साथ लेके चल रहे हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल राउंड और येलो, मतलब कि हमने सीड का शेप ले लिया एक और हमने उसका कलर ले लिया, ये हमारे 2 ट्रेड्स हो गए। अब हमारे सीड शेप के 2 ट्रेड्स हो गए, राउंड और रिंकल और येलो एंड
ग्रीन हमारे जो हो गए वो कलर हो गए। ठीक है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम दो डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स द इनहेरिटेंस ऑफ इट हेल्प्स स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स लाइक सीड कलर एंड सीड शेप। इसका जो रेशियो है ये याद कर लेना, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:2:4:1:2:1:2:1। आप ये जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो याद कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमीजाइगस कंडीशन व्हेन जीन इज प्रेजेंट इन ओनली वन कॉपी इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, मीनिंग देयर्स नो corresponding allele on the homologous chromosome. For example, in human males X and Y, मेल्स में X एंड Y होता है तो दे आर हेमीजाइगस फॉर जीन X क्रोमोसोम, मतलब X और Y। अब ये X जो जीन है ये दूसरे X पे भी हो सकता है, लेकिन मेल के केस में क्या होता है सिर्फ एक ही X ही प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन में कहते हैं हम लोग हेमीजाइगस कंडीशन। रेसिप्रोकल क्रॉसेस, अ रेसिप्रोकल क्रॉस इज अ टाइप ऑफ क्रॉस वेयर सेक्सेस ऑफ पेरेंट्स आर रिवर्स्ड इन सेकेंड मेटिंग टू टेस्ट वेदर अ ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट सेक्स। कहने का मतलब कि मान लो अगर हमने एक बार, ये हमारा फीमेल है, ये हमारी मेल है, ये हमारा मेल है, तो हमने एक बार टॉल फीमेल को डॉर्फ मेल से क्रॉस करा दिया। फिर हमने क्या किया, एक बार डॉर्फ फीमेल को टॉल मेल से क्रॉस करा दिया। हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस है, इसको हम लोग यूज कर, इट इज यूज्ड वेदर अ ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट्स सेक्स। मतलब ये जो ट्रेट है, क्या ये टॉल जो मतलब जो प्लांट हाइट है, जो हमारा ट्रेट है, क्या वो मेल से कंट्रोल होता है, मेल सेक्स से या फीमेल सेक्स से। इसको हम लोग स्टडी करने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं। ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। इफ बोथ क्रॉसेस गिव सेम रिजल्ट द ट्रेट इज ऑटोजोमल। इफ रिजल्ट्स आर डिफरेंट द ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड। कहने का मतलब अगर मान लो हम लोग फीमेल को टॉल या डॉर्फ पे टॉल करें तो भी हमारा अगर प्रोजेनी जो है वो टॉल ही आ रहा है दोनों ही केस में, तो इसका मतलब कि वो ऑटोजोमल से गवर्नड है। अगर डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब कि वो सेक्स लिंक्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद करना। बैकक्रॉस, बैकक्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड F1 जनरेशन एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट। या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव। मतलब हमारा मान लो कैपिटल टी हमने क्रॉस कराया स्मॉल टी से, हमारा ये F1 आ गया। ठीक है, अब हम इस F1 को या तो डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएंगे या तो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे। इसको हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। अब ये बैक क्रॉस दो तरीके के होते हैं। बैक क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट यूज टू मेंटेन द डोमिनेंट ट्रेट। मतलब हम लोग इसको कैपिटल टी F1 है, इसको हम इससे क्रॉस करा देंगे तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, कैपिटल टी होगा या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। बैक क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट यूज टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ F1 कि F1 का जीनोटाइप क्या है। मान लो ये तो हमें टॉल दिख रहा है कैपिटल, ये क्योंकि ये तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, पर हमें अभी तो नहीं पता ना कि ये टॉल ये कैपिटल टी के कारण दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण दिख रहा है। तो हमको जीनोटाइप पता करना है इस F1 का, इसीलिए हम लोग जब इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो फिर जो जीनोटाइप आएगा उस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये जो F1 है ये हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन में है या होमोजाइगस कंडीशन में, वो रेशियो बनता है। अगर ये रिसेसिव पेरेंट्स, अगर मान लो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराए तो हमारा 50% टॉल आएगा, 50% डॉर्फ आएगा। और अगर दोनों ही इफ बोथ फिनोटाइप्स अपीयर, इसका मतलब F1 जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, मतलब वही चीज़ है कि अगर दोनों ही टॉल और डॉर्फ दोनों आ रहा है मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। रिमेंबर ऑल टेस्ट क्रॉसेस are back crosses but all back crosses are not test cross. Now coming to Mendel's law of inheritance. First law is law of segregation, also known as law of purity of gametes. ये कहता है कि each trait is controlled by a pair of allele. During gamete formation, these alleles separate or segregate so that each gamete carries only वन अलील ऑफ ईच ट्रेट। कहने का मतलब कि अगर हमारा मान लो एक ट्रेट है, हमने ट्रेट ले लिया प्लांट हाइट, तो जैसे मैंने बताया था कि इसके दो ट्रेट हो गए, टॉल या डॉर्फ। टॉल का मान के चलो कैपिटल टी होगा हमारा जीनोटाइप या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और डॉर्फ का स्मॉल टी होगा। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा मतलब मियोसिस होगा
तो अलील्स सेपरेट करेंगे। तो ये जब सेग्रीगेट करेंगे तो ये मतलब ये रैंडमली सेग्रीगेट करेंगे एक भी विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। तो जैसे कि अगर अगर टॉल है तो ये कैपिटल टी का दो गैमेट बन गया, मतलब यहाँ पे तो एक ही गैमेट बनेगा बेसिकली, तो फिर भी ठीक है, कैपिटल टी दो अलग अलग गैमेट बन गए। फिर यहाँ पे क्या बने, दो अलग तरह के गैमेट बने, यहाँ तो एक तरह का गैमेट बनेगा, यहाँ दो तरह का गैमेट बनेगा, सिमिलरली यहाँ पे बनेगा। तो हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं। तो कैपिटल टी हमारा गैमेट है, ये एक स्मॉल टी हमारा गैमेट है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दीज अलील्स सेपरेट सो दैट ईच गैमेट कैरी ओनली वन अलील ऑफ अ ट्रेट। अब ये एक गैमेट में गया चला गया कैपिटल टी का एक अलील, एक स्मॉल टी का अलील दूसरे गैमेट में चला गया, और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड देन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द अलील्स रिकम्बाइन रैंडमली, मतलब फिर ये रैंडमली रिकम्बाइन करेगा विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, मतलब ये जो अलील है ना तो इसको अफेक्ट करेगा ना ये इसको अफेक्ट करेगा, ये खुद ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे। Example, F1 hybrid capital T small t produces capital T and capital T, और इसका जो F2 मोनो हाइब्रिड रेशियो आएगा ये याद कर लेना, जो मैंने पहले बता रखा है याद करने के लिए, 1:2:1, मतलब कैपिटल टी दो कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा आ गया F1। अब हम इसका सेल्फिंग कराएंगे, तो हमारे पास दो तरह के गैमेट बने, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब जब हम यूनिट स्क्वायर बनाते हैं तो कैपिटल टी इधर गया एक गैमेट, मतलब यहाँ पे मेल आता है यहाँ फीमेल आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी इधर आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो कैपिटल टी बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये हमारा एक टॉल जियोटिपिक रेशियो क्या हो गया, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये डॉर्फ है। तो जिनोटिपिक रेशियो हमारा आ गया 1:2:1, कैपिटल टी का एक आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी का आ गया, और एक स्मॉल टी का आ गया। पर हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा 3:1, दैट इज टॉल एंड डॉर्फ। ओके, now coming to second law of genetics, sorry, Mendelian law of genetics, that is law of independent assortment। इसकी कहता है कि when two or more traits are studied together, the alleles of one trait assort independently of the alleles of other trait. This means the inheritance of one trait does not affect the other। जैसे कि हमने दो ट्रेट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, सीड का शेप और सीड का कलर। सीड शेप कैसे हो गया हमारे पास, दो है, राउंड और रिंकल्ड, और सीड कलर क्या हो गया, येलो एंड ग्रीन। तो ये कहता है कि जैसे कि मान लो हमने ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ये डोमिनेंट ट्रेट है, इसको हमने रिसेसिव से क्रॉस कराया तो हमारा F1 आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब जो ये दो ट्रेट है इसके जो गैमेट फॉर्मेशन होंगे ये एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए ट्रांसफर होंगे, और दूसरा कि ये सेग्रीगेट होंगे। जैसे कि मान लो गैमेट्स कैसे बनेंगे, देखो एक गैमेट में तो कम से कम एक अलील का, एक ट्रेट का एक अलील तो आएगा ही आएगा। तो एक हमारे पास है कैपिटल वाई गैमेट 1, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा स्मॉल वाई। तो इसके अंदर हमारे जो ट्रेट्स थे, दो ट्रेट्स हमने लिए थे, राउंड और येलो, इसके दोनों डोमिनेंट आ गए, इसके सीड शेप का इसमें डोमिनेंट आ गया, रिसेसिव आ गया, सिमिलरली ऐसे ऐसे ट्रेट्स ट्रांसफर हुए हैं, पर ये दोनों एक दूसरे को कभी भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कहना यही है कि व्हेन टू और मोर ट्रेट्स आर स्टडीड टुगेदर, जब हम दो ट्रेट्स को लेके चलते हैं, अलील जो है वो सेपरेट होता है इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। और इसका सिमिलर वही है F2 जो रेशियो 9:3:3:1, इसको याद कर लेना। These are 7 characters that was studied by Mendel, that is plant height,
the two allele, dominant allele and recessive allele, tall and short, like tall and dwarf. Then the next character was seed shape, round and yellow, seed color, yellow and green, seed coat color, that will be either green, either white or gray. Then pod shape, either full or wrinkled. Pod color, green or yellow. Flower position will be either axial or terminal. So आप ये जो मेंडल ने ये 7 ट्रेड स्टडी किए थे, इनको याद कर लेना. अब मेंडल के रीजन, सक्सेस का रीजन क्या था? चॉइस ऑफ द पी प्लांट. उसने पी को चूज करा था क्योंकि वो इजी था, क्विक रिजल्ट्स आए थे क्लियर ट्रेड से. मतलब या तो टॉल है या तो डॉर्फ दिख रहा है, उसका लाइफ साइकिल भी कम था, जल्दी जल्दी उसको रिजल्ट्स मिल रहे थे. ट्रू ब्रीडिंग लाइन, क्योंकि जेनेटिक प्योरिटी इंश्योर्ड था, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट क्रॉप था. स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट टाइम. इस मेंडल ने एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया तो वो सिंप्लीफाइड एनालिसिस हो गया. एक्यूरेट काउंटिंग एंड रेशियो, जो कि उनके डेटा को रिलायबल और रिपीटेबल रिजल्ट्स देते रहा, अच्छा रिजल्ट देते रहा. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ने यूज करा जो कि इजी टू डिस्टिंग्विश थे. हाइट को यूज करा, टॉल दिख रहा है टॉल, डॉर्फ दिख रहा है डॉर्फ, उसने अच्छे से उसको डिस्टिंग्विश कर पाए. और ही अप्लाइड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट गेव क्रेडिबिलिटी टू रिजल्ट्स. But after Mendel worked, he published his work, पर उनका वो वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ. बाद में ये जो 3 साइंटिस्ट थे ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे और इन्होंने वापस से मेंडल के वर्क को वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे थे. फिर उन्हें पता चला कि मेंडल ने भी ऐसा कुछ काम करा है. सो इट वाज रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क. इसके बाद उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब मिला. सो रिडिस्कवरी वॉज इन ईयर 1900. ये ईयर याद कर लेना. और ये 3 साइंटिस्ट हैं, कार्ल कॉरेंस, ये ह्यूगो डिवेरिस एंड टेशमार्क, एंड दे बिलोंग टू कंट्री जर्मनी, हॉलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया रेस्पेक्टिवली. एंड मेंडेलियन फाइंडिंग्स नोन एज मेंडेलियनिज्म और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो मेंडल के लॉ तो ठीक थे पर उनमें कई डेविएशंस भी थे. उन डेविएशंस को अब हम पढ़ते हैं. पहला डेविएशन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस. द हेटेरोजाइगोट शोज एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप बिटवीन 2 होमोजाइगोट्स. मतलब कि कैपिटल आर है हमारा, मान लो इसमें जैसे कि स्नैपड्रैगन में होता है, ये एग्जाम्पल याद कर लेना, ये रेड कलर का होता है. और अगर स्मॉल आर है तो वाइट होता है. तो कैपिटल आर स्मॉल आर अकॉर्डिंग टू मेंडल ये तो रेड आना चाहिए था, ठीक है. पर डेविएशन क्या हुआ, यहाँ पे इंटरमीडिएट कलर आ गया, मतलब रेड और व्हाइट मिलके पिंक हो गया यहाँ पे. तो ये डेविएशन था मेंडल के लॉ का. दूसरा कोडोमिनेंस. बोथ अलील एक्सप्रेस फुल्ली एंड साइमल्टेनियसली इन हेटेरोजाइगस कंडीशन. जैसे ह्यूमन ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें कि ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी. ये एग्जाम्पल्स याद कर लेना, एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. स्नैपड्रैगन, ह्यूमन ए बी ब्लड ग्रुप आर एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. Then overdominance, situation in which heterozygote has a phenotype that is superior or more advantageous than either of the homozygotes. मतलब जैसे कि ह्यूमन का सिकल सेल एनीमिया, अगर होमोजाइगोट कंडीशन में रहते हैं तो वो मर जाते हैं, लेकिन अगर हेटेरोजाइगोट कंडीशन में है सिकल सेल एनीमिया, अगर एनीमिक एक पर्सन है, इसको सिकल सेल है और वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो दे आर मोर रेजिस्टेंट टू मलेरिया. क्योंकि क्या होता है ना, सिकल सेल का ब्लड आरबीसी हो जाता है, जिसके कारण कि मलेरिया का जो सेल है, वो मलेरिया जो है वो अच्छे से उसमें ग्रो नहीं कर पाते, तो वो अफेक्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से इंसान को. तो ऐसा कहने का मतलब है कि जो हमारा हेटेरोजाइगोट है, दे आर मोर सुपीरियर टू देयर होमोजाइगोटिक पेरेंट्स. अब है एपिस्टैसिस. इसमें क्या होता है, वन जीन मास और मॉडिफाइज एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन. मतलब ये एक जीन है, मान लो कैपिटल ए और दूसरा जीन है कैपिटल बी, ये इसके इफेक्ट को मास्क कर देता है और ये खुद का इफेक्ट शो करेगा, इसके इफेक्ट को ढक दिया तो इसका तो कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा. यही एपिस्टेसिस है. इसमें 2 जीन होते हैं इन्वॉल्व. एक होता है एपिस्टैटिक जीन. एपिस्टैटिक जीन क्या करता है, जो मास्क कर रहा है उसको बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन. और दूसरा होता है हाइपोस्टैटिक जीन, जो मास्क हो रहा है, मतलब जो छुपा रहा है, दैट इज एपिस्टैटिक जीन, और जो छुप रहा है दैट इज हाइपोस्टैटिक जीन. एग्जाम्पल, कोड कलर इन माइस.
फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन सोज कंटिन्यूअस वेरिएशन रेदर देन डिस्क्रीट रेशियोज। मेंडल ने क्या बोला था कि एक जीन है वो एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, पर यहाँ क्या बोल रहा है कि ट्रेट्स कंट्रोल बाय मैनी जीन, मतलब एक ट्रेट जो है वो बहुत सारे जीन से कंट्रोल हो रहा है और वो कंटिन्यूअस वेरिएशन शो कर रहा है। मेंडल में क्या था, वो था, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएशन था, या तो टॉल या तो डॉर्फ, कोई क्लासिफाई नहीं था, नो कंटिन्यूअस वेरिएशन वाज देयर इन मेंडल स्टडी। पर ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कहता है, ये उसका डेविएशन है कि वहां पे कंटिन्यूअस वेरिएशन होंगे। जैसे कि ह्यूमन हाइट, आप कभी भी नहीं देखोगे कि एक 6 फीट का इंसान दिख रहा है पॉपुलेशन में और एक 4 फीट का दिख रहा है, नहीं, 6 फीट का है तो 5.9 का भी है, 5.8 का भी है, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा है। एग्जाम्पल, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन, वेट, स्किन कलर, वेट कलर, ये एग्जाम्पल याद कर लेना। मल्टीपल अलील, more than 2 alleles exist for a single gene although each individual carries only 2 allele। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप। एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डेफिनेशन, जस्ट रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स। अब आते हैं जीन इंटरेक्शन पे। जीन इंटरेक्शन is the refers to phenomena where 2 or more genes influence the expression of a single trait rather than each gene acting independently। इसमें क्या होता है, ये A जीन है और ये B जीन है, ये इसको इफेक्ट करेगा, ये इसको इफेक्ट करके कोई एक तीसरा ही फिनोटाइप लाएगा और ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ना कि अकेले काम करते हैं। तो इस फेनोमेना को कहते हैं हम लोग जीन इंटरेक्शन। टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो क्या है हमारा, 9:3:1। तो जो जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, ये इस रेशियो से डेविएशन होता है। पहला जीन इंटरेक्शन है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, अ टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन वेयर 2 डिफरेंट जीन्स प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप एंड प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 डोमिनेंट अलील फ्रॉम आइदर जीन इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस अ ट्रेट। मतलब ये हमारा ए, मान लो एक इस फॉर्म में है, एक ए जीन है, ये एक बी जीन है, ये पर्टिकुलर एक एक्स फिनोटाइप दे रहा है। अगर ये दोनों साथ में भी है तो भी एक्स फिनोटाइप ला रहा है, अगर ये ऐसे कंडीशन में भी है तो भी ये एक्स फिनोटाइप लेकर के आ रहा है, ये अगर इस कंडीशन में भी है तो भी एक्स फिनोटाइप लेके आ रहा है। लेकिन जब ये रिसेसिव फॉर्म में आ गया तो ये कुछ अलग ही जीनोटाइप देगा। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि ये डेफिनेशन वही बता रहा है कि टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन में 2 डिफरेंट जीन्स प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप, दो मिल करके वही फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे जो ये अकेले भी प्रोड्यूस करेगा। मतलब अकेला भी वो डोमिनेंट अगर फॉर्म में है तो भी वो वही सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा जो कि दोनों साथ में कर रहा है, और अगर ना रहे तो कुछ वो थर्ड फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा। इसका एग्जाम्पल है फ्लोटिंग हैबिट इन राइस, एंडोस्पर्म शेप इन मेज। ये रेशियो याद कर लो, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिस्टैसिस मैंने पहले बताया, जैसे मैंने पहले बताया कि वन जीन मास्क और मॉडिफाइज द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। यहाँ पे मैं फिर से वो दो टर्मिनोलॉजी लिख देती हूँ, हाइपोस्टैटिक जीन और एक एपिस्टैटिक जीन था। तो ये आप याद कर लेना, ये दोनों टर्मिनोलॉजी, हाइपोस्टैटिक जो छुपता है और एपिस्टैटिक जीन जो छुपाता है, उस हाइपोस्टैटिक को ऐसे याद कर लेना। इसके दिए दो तरह के हैं, रिसेसिव एपिस्टैसिस और या फिर सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। इन दोनों का रेशियो सेम होता है। होमोजाइगस रिसेसिव ऑफ वन जीन मास्क द अदर जीन, मतलब रिसेसिव फॉर्म जो है वो दूसरे जीन के, चाहे वो डोमिनेंट में हो चाहे रिसेसिव हो, किसी भी फॉर्म में हो उसको सप्रेस कर देता है। इसका एग्जाम्पल है कोट कलर इन लैब्राडोर्स। डोमिनेंट एपिस्टैटिक, क्या डोमिनेंट अलील जो है दूसरे जीन को मास्क कर देता है। इसका एग्जाम्पल है ये फ्रूट कलर इन समरस्कॉस, और इसका रेशियो है 12:3:1। रेशियो एकदम अच्छे से याद करना, रेशियो से ही क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ये डेफिनेशन से उतना नहीं पूछते, रेशियो से क्वेश्चंस आते हैं, और एग्जाम्पल देख लेना। और ये साथ में जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ये भी देख लेना, दोनों के रेशियो सेम है और ये डेफिनेशन वाइज दोनों सेम ही चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन या डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टैसिस, 2 जीन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ फिनोटाइप, मतलब एक पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस करने के लिए दोनों ही जरूरत है। फ्लावर कलर इन स्वीट पी, मतलब अगर पर्पल फ्लावर हमको चाहिए तो मान लो 2 जीन है हमारे पास, कैपिटल सी कैपिटल पी, ये दोनों जीन प्रेजेंट होंगे तभी हमारा पर्पल फ्लावर होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक भी एब्सेंट है, मतलब मान लो एक कैपिटल सी ही सिर्फ प्रेजेंट है, स्मॉल पी रिसेसिव फॉर्म में आ गया, या जो हमारा स्मॉल सी जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है और जो कैपिटल पी जो है जीन जो डोमिनेंट फॉर्म में, या दोनों के दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है, तो ये व्हाइट कलर ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब वही है। ये रेशियो 9:7 याद कर लेना।
Polymeric gene action or additive gene interaction, a type of gene interaction where two or more genes contribute additively to a single trait and their combined effect determines the phenotype. इसका एग्जाम्पल है फ्रूट शेप इन पम्पकिन, इसका रेशियो 9:6:1। इसमें क्या हो रहा है, पॉलीमेरिक में दो जीन वो अकेला अकेला तो खुद ही एक्सप्रेस कर ही रहा है, पर जब दोनों मिल जाते हैं तो वो एक मतलब उस फिनोटाइप को और अच्छा मतलब ऐड कर दे रहा है। एडिटिव क्या होता है, मान लो 1+1 हो गया 2 और 1 1 रहा अकेला, एक हो गया अलग अलग हो गया, तो वो उसको उस फिनोटाइप के एक्सप्रेशन को और इन्हांस करता है। तो इसका रेशियो है 9:6:1। इनहिबिटर जीन इंटरेक्शन, वन जीन जो इसको इनहिबिटर जीन है सप्रेस करता है दूसरे जीन को regardless of alleles present on the second gene, मतलब one gene suppresses or inhibits the expression of another gene regardless of alleles present on the second gene। इसका एग्जांपल है डेवलपमेंट ऑफ एल्यूरोन कलर इन मेज, इसका रेशियो याद कर लेना 13:3। इसका मतलब ये हुआ कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन के अलील को सप्रेस करता है रिगार्डलेस कि वो डोमिनेंट फॉर्म में रिसेसिव फॉर्म में, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। सो विद दिस आई एंड दिस सेशन। ये मैंने आपको 2 MCQ दिए हैं, ये आप सॉल्व करना और प्लीज़ लेट मी नो इफ़ मैंने कुछ पोर्शंस अगर छोड़ दिए हैं कहीं पे, अगर कुछ और मुझे डील करना है इस पोर्शन जेनेटिक्स पोर्शन से, प्लीज़ लेट मी नो एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक, इट विल बी वैल्यूएबल फॉर मी। With this, I end this class. Hope you enjoyed this session. Thank you. Thank you so much and happy learning. All the best for your exam. Thank you.